Hello everyone, welcome to the second lecture of chemical reactions and equation. In the previous video, we have studied about the chemical reaction and we have also seen about different characteristics of any chemical reaction. In this video, we will focus mainly on the representation part, that how we are going to represent any chemical reaction in the theoretical form. Okay, and we will also see the balancing part of any chemical reaction, that how you are going to balance any chemical reaction. So let us start with our first topic, which is chemical equation. So what is a chemical equation? It's a method to represent any chemical reaction with the help of symbols and formulae of the substances इन्वॉल्व इन दैट रिएक्शन, यानी कि किसी भी रिएक्शन में जो सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड हैं उनके सिंबल्स एंड फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए किसी भी रिएक्शन को थ्योरेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है केमिकल इक्वेशन. ओके, so now suppose in your exam question will be asked from this topic that in a statement form a reaction will be given. Let's suppose we have also used this reaction of that the burning of magnesium oxide. So in the exam, the question will be given in the form as like represent the burning of magnesium ribbon in the presence of air in the form of chemical equation. So how you are going to do it? Okay. So in the exam, you have to follow some steps. Now suppose we are going to represent, the question is burning of magnesium ribbon. Okay, this is the question and you have to represent this in the form of chemical equation. How you are going to do it? So there are some steps, basically two steps. So the step one, you will write the word equation. Word equation means you will write the name of the elements and the compounds involved in that reaction in the word form. Okay, like magnesium ribbon, we have a magnesium involved in that reaction which reacts with oxygen and they follow the process, and magnesium oxide is formed. So this method of representing the equation in the word form is called word equation. This method of representing any chemical reaction in the word form is called word equation. And in this step 2, you have to write the chemical formulae, or in case of elements you have to write symbol of those elements. Like in case of magnesium, I am writing Mg. In case of oxygen, it is O2, which comes from air. Okay, and then the arrow sign, and the formula of magnesium oxide is MgO. Okay, now suppose now this reaction is not complete yet. You have to show the signs as well, like which state the element is present, and oxygen is present in the gaseous, magnesium oxide will be in the solid state. You need not to worry, I will explain these things to make the reactions more informative later in this video. Let's see another example. Let's say the question is given as that hydrogen reacts with oxygen to form water, and you have to represent this question in the equation form. How to do it? Okay, in the exams the question will be asked like this. So the step 1, again follow the step 1, just write the word equation. Word equation meaning write the name of elements involved in that reaction. Hydrogen plus oxygen, they react to form water. Okay. Step 2, use the symbols of the elements or the compounds involved in that reaction. Like H2 reacts with O2 and form H2O. Okay. And to make the information more informative, obviously you can show the states of those elements in which they are formed. Okay. But now the new question arises, that is the chemical equation which I have written here is completely correct? क्या ये सही लिखा गया है? अब इस बात का पता कैसे चलेगा?
तो क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. What does the law of conservation of mass says? So, according to law of conservation of mass, matter is neither created nor destroyed in a chemical reaction. यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है. So, क्या होता है इन केमिकल रिएक्शन? Write a note that during a chemical reaction, only the rearrangement of atoms takes place. No new element is formed. कोई नया एलिमेंट फॉर्म नहीं हो रहा है. सिर्फ जो एलिमेंट्स पहले मौजूद थे, जो रिएक्टेंट्स के जो एलिमेंट थे, उन्हीं में एटम्स का रीअरेंजमेंट हो रहा है और एक नया कंपाउंड बन रहा है. कोई नया एलिमेंट नहीं बन रहा है. ठीक है. So according to law of conservation of mass, matter is neither created nor destroyed in a chemical reaction. अब इसी को अदर शब्दों में कैसे कहेंगे कि जितना सब्सटेंस, जितना रिएक्टेंट पहले रिएक्शन के पहले था, उतना ही सब्सटेंस, उतना ही प्रोडक्ट हमें रिएक्शन के बाद मिलना चाहिए. यानी कि द मास ऑफ रिएक्टेंट, इन अदर वर्ड्स ये कहा जा सकता है मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन. सो अब यहां पर हमने तो इक्वेशन लिख दिया है. सो नाउ लेट्स चेक क्या ये मास जो दिया गया है ये रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के केस में बराबर है क्या. अगर बराबर है तो ये सही लिखा गया है. सो व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम? इट्स 24. नाउ इन केस ऑफ ऑक्सीजन व्हाट इज द एटॉमिक मास? सो फॉर वन एटम द एटॉमिक मास इज 16. सो हियर आर टू एटम्स. Atomic mass will be 32. And what is the atomic mass of MgO, magnesium oxide? It's 24 plus 16 equal to 40. But what is the mass of the reactants? It is the mass of product. What is the mass of reactants? When we add these two, we get 56. So the mass of the reactant and the mass of the product is not equal. So the representation of these chemical equation is incorrect. So we have to make it correct. Okay. So such reactions in which the mass of the reactants and mass of the product is not same, such equations are called unbalanced equation. So we have to balance them so that we can represent the correct form of the reaction in the equation form. Okay. So I hope you got the answer that why balancing is used. Balancing is used just to represent the chemical reaction in the correct form, in the form of chemical equation. Now let's check about this reaction, H2 reacting with O2 and forming water. What is the atomic mass? Or in case of it's a molecule, so what is the molecular mass of H2? It's 2, obviously 2 units, 24 units, 32 units. This will be 56 unified mass. In short form, it is represented as U. O2, 32. Okay. H2O. So it's 2 for hydrogen and 16 for oxygen. It's 18 unified mass. But what about this one? When we add the mass of the reactants, it's 34. Again, in this case also, the mass of the reactants and mass of the product is not same. तो इससे क्या पता चल रहा है? अब चूंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो इनवैलिड हो नहीं सकता, सिंस इट्स अ लॉ, ये तो प्रूवन फैक्ट है. यूनिवर्सल ट्रूथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एग्जिस्ट करता है. इट मीन्स हमने जो ये रिएक्शंस रिप्रेजेंट किए हैं ये गलत है. ठीक है. और इसे हमें सही बनाना है. सही बनाने का तरीका ही बैलेंसिंग है, किसी रिएक्शन को बैलेंस करना. टिल नाउ व्हाट वी हैव स्टडीड? We have studied about chemical equation. Okay. So what is chemical equation? It's a method to represent any chemical reaction with the help of symbols and formulae of the substances involved in that reaction. But now what we are going to study? We are going to study about the balancing of chemical equation. Okay. And why balancing is done? I have told you earlier that to represent the chemical reaction in the equation form in a correct way, you have to represent any chemical reaction in the balanced form. Okay. So now before balancing, let's study about balanced and unbalanced chemical. So the first topic is, let's study first the unbalanced.
Okay, after that we will study about the balance. So unbalanced chemical equation. So the unbalanced chemical equation is those chemical equations which do not have equal number of atoms in the reactants and product side, okay, are called unbalanced chemical equations. Means, what are the examples? Let's say we have written two equations just a few moments ago. These equations are Mg reacting with oxygen and producing magnesium oxide. The other one is H2 reacting with O2 and producing H2O. Okay, producing H2O. So these are the examples of unbalanced chemical equation, and these are incorrect because they are not following the law of conservation of mass. Now we have to make them correct by writing them as a balanced chemical equation. So we have to balance them first. How we are going to do it? So let's say if I just, here is two oxygens, if I multiply this compound with 2 and then hydrogen with 2. Now let's try to check the mass on the both sides of the reactant. What will be the mass of one molecule of hydrogen? It's 2, and there are two molecules. So 2 multiplied by 2, so total mass will be 4 unified mass. And again here is one oxygen molecule, so the mass will be 32. And what will be the mass of one hydrogen molecule? We have seen earlier, it's 2, and mass of one oxygen atom, it's 16, and there are two molecules of H2O, so multiplied by 2. Let's calculate. It will be 36, again 32. Let's add the mass of the reactants, it's 36. So initially 36, after the reaction it's 36. Now it's following the law of conservation of mass. It's an example of balanced. Initially it was unbalanced. Okay, so it's an example of balanced chemical equation. So write the definition of balanced chemical equation. So those chemical equations which contain equal number of atoms in the reactants and product side are called balanced chemical equations. यानी कि वैसे chemical equations जिनमें reactants as well as product side में equal number of atoms मौजूद हो उन्हें balanced कहा जाता है. So now let's try to balance this reaction, the above reaction. Okay, here is one magnesium atom. In this case also only one magnesium atom is there, but in case of oxygen there here is two atoms, but in case of the compound there is only one atom. So what if I multiply the compound with 2? So now oxygen is balanced but magnesium gets doubled, so I have also multiplied this. Now let's try to check that क्या ये अभी फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को. The reaction becomes 2Mg plus O2 reacts to form 2MgO. एक मैग्नीशियम एटम का एटॉमिक मास है 24, so we have 2 here, 2 into 24, it's 48. Okay, and one oxygen molecule का एटॉमिक मास है 32, so we add it and we get 80. So the total mass of the reactants is 80 unit unified mass. Now the mass of one oxygen is 16 and the mass of one magnesium atom is 24. Okay, so total is 40, but we have two atoms, two molecules of MgO, so the total mass will be 2 into 40, it's 80. So we have equal mass of reactants and product in the both sides. So now this reaction is also balanced. So how I am going to do this? ये मैं बैलेंसिंग कैसे कर रहा हूं, अब इससे जो है हमें सीखना है. सो हेडिंग डालिए नेक्स्ट टॉपिक, which is balancing of chemical equation. So our new topic is balancing of chemical equations. In the balancing process we have to follow 3 or 4 steps. Okay, and I am going to follow the steps which are dictated in the NCERT book.
So I am going to follow the NCERT book and you have to learn these things so that when the question comes in the exam, you are able to solve that question. Okay, so now let's say for the example purpose, we have the reaction iron reacts with water, okay, and forms Fe3O4. It is known as iron 2,3 oxide. In class 9th you must have studied about this compound. Fe3O4 is known as iron 2,3 oxide. So now we have to balance this one. So what will be the step 1? The first step will be just make boxes. So I have written the equation again. The first step is to make boxes. बॉक्स बनाना है पहले स्टेप में. ये बॉक्स बनाने का क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों बना रहे हैं? बॉक्स बनाने से सिग्निफिकेंस ये निकलता है कि हमें ये जो बॉक्स के अंदर घेरे हुए एलिमेंट्स या फिर जो कंपाउंड्स हैं, इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है ड्यूरिंग द बैलेंसिंग प्रोसेस. ओके, नाउ स्टेप 2. Step 2. Make a list of the atoms in the both sides of the present in the both sides of the reaction or chemical equation. So हमें लिस्ट बनाना है. सबसे पहले लिस्ट बनाना है जितने भी एलिमेंट्स और एटम्स प्रेजेंट हैं in the reactant as well as in the product side. Okay, so let's say this is the list for elements. We are going to write here reactants, product. We have to make a list. So the elements involved in this reaction are iron, hydrogen, oxygen. Okay, number of atoms of iron in reactants 1, number of atoms of hydrogen in reactants 2, and number of atoms of oxygen in reactants is 1. Okay, and product, in case of product, number of atoms of iron in case of product is 3, number of hydrogen atom in case of product 2, and number of oxygen atom in case of product is 4. So from here, from this table, you can see that number of atoms in the both side of the reactions is not equal. So it's an example of unbalanced chemical reaction. So now the step 3. Step 3 में क्या करना है? स्टेप 3 में हमें ऐसा कंपाउंड चुनना है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स में which contains maximum number of atoms. So just like इधर हमारे पास 4 बॉक्सेस है, यानी कि टोटल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स 4 हैं मिला करके दोनों. सो हमें ऐसा कंपाउंड चुनना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं. सो दिस इज द कंपाउंड वी हैव टू सेलेक्ट. इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है, टोटल 7 एटम्स है इसमें. सो एक बार जब ये कंपाउंड सेलेक्ट कर लिया है, उसमें से वो एलिमेंट को चुनना है जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स कंटेन करता है. फॉर एग्जाम्पल अभी हमने इस कंपाउंड को चुना था. सो इसमें आयरन कितने हैं? 3. ऑक्सीजन कितने हैं? 4. सो सबसे पहले जो है ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे. क्यों? क्योंकि ये 4 नंबर ऑफ एटम्स, 4 नंबर ऑफ एटम्स इट कंटेन्स. ओके, सो लेट्स ट्राई टू बैलेंस ऑक्सीजन फर्स्ट. सो इफ इट इज 4 एटम्स हियर, नन. सो यहाँ पर क्या है? एक ही है. सो अगर हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं देन ऑक्सीजन विल बी बैलेंस्ड. ओके, बट व्हाट हैपेंस, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन ये चेंज हो जाता है. ठीक है, तो पहले यहाँ पर 2 हाइड्रोजन था, इधर भी 2 था, लेकिन जैसे हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज कर जाते हैं. सो इसको बैलेंस करने के लिए इस साइड भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, एंड अब हमारे पास क्या बचा? हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुका है. अब बचा आयरन. ये बैलेंस हो गया था, ये बैलेंस हो गया, बचा आयरन. सो LHS के साइड पे, रिएक्टेंट्स के साइड पे आयरन एक ही है, प्रोडक्ट के साइड पे आयरन 3 है. सो अगर हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो सारे एलिमेंट्स बैलेंस हो जाते हैं. ठीक है, सो एक बार फिर से समझो क्या हुआ. पहले स्टेप में क्या करना था? जो रिएक्शन में जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं उनको बॉक्स में घेरना है. बॉक्स में घेरने का क्या मतलब है कि बॉक्स के अंदर भी कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है. ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है? सेकेंड स्टेप में लिस्ट बनाने हैं. जितने भी एलिमेंट्स हैं रिएक्टेंट्स में एंड प्रोडक्ट में उनके लिस्ट बनाने हैं. स्टेप 3 में क्या करना है?
हमें वो कंपाउंड सेलेक्ट करना है विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, एंड आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ दैट कंपाउंड हमें उस कंपाउंड में वो एलिमेंट सेलेक्ट करना है जिसके एटम्स की संख्या सबसे ज्यादा है। जैसे कि इस एग्जांपल में Fe3O4 है, ठीक है। Fe3O4 में हमने ऑक्सीजन को सेलेक्ट किया है, क्यों? क्योंकि आयरन के 3 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, तो हमें वही एलिमेंट सेलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो। उसके बाद हमें उसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए जैसे कि यहाँ पर 4 है, इधर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। अब उसको बैलेंस करने के बाद जो रिमेनिंग था हाइड्रोजन, ये चूंकि 8 हो गया है, इधर 2 था, इसे 4 से मल्टीप्लाई किया, एंड देन फिर हमने रिमेनिंग एलिमेंट को भी बैलेंस किया। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स से द गिवन केमिकल इक्वेशन इज सोडियम रिएक्ट्स विथ वाटर H2O, ठीक है, एंड फॉर्म्स सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, and with this H2 is also formed. So this is the given chemical equation and we have to balance this equation. Okay, so पहला स्टेप क्या था? स्टेप 1 याद करो। पहला स्टेप बॉक्स बनाना, सबसे इजी स्टेप बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने का मतलब क्या है? बॉक्स के अंदर के किसी भी एलिमेंट या फिर कंपाउंड को छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। तो पहला स्टेप है बॉक्स बनाइए। सेकेंड स्टेप में क्या करना है? लिस्ट बनाना है। बस देखते जाओ और उतारना है बस नीचे। सो यहां पर एलिमेंट, यहां पर रिएक्टेंट्स, एंड देन प्रोडक्ट्स। The elements involved in this reaction is sodium, hydrogen, oxygen. Okay, so in case of reactants, number of atoms of sodium is 1. In case of hydrogen, number of atoms is 2, and in case of oxygen, number of atoms is 1. Okay, so products के साइड में आप देखेंगे number of atoms of sodium 1, number of atoms of oxygen 1, and number of atoms of hydrogen is 3. Okay, now in the third step, step number 3, अब ये स्टेप समझना जरूरी है, बहुत सारे लोग यहीं पर फंसते हैं। हमें वो कंपाउंड सेलेक्ट करना है विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। सो इस केस में क्या है? ये तो एक ही है, यहां पर टोटल 3 नंबर ऑफ एटम्स है, यहां पर भी 3 है, एंड यहां पर भी 2 है। सो अब डिबेट किस में होगा? यहाँ पर 3 है, यहाँ 3 है, इसमें से किसे सेलेक्ट करेंगे? किसे सेलेक्ट करेंगे? सो ऐसे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, क्योंकि ये वेरिएशन में कंटेन कर रहा है, ठीक है। अब इसमें से कोई भी एक एलिमेंट को पकड़ के बैलेंस कर सकते हैं। जैसे कि देखो, अभी देखो बैलेंस कैसे करना है। सोडियम तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इधर भी एक, इधर भी एक, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है? इधर भी एक, इधर भी एक, यहाँ से मैच करा सकते हैं। बट दिक्कत किसको हो रही है? हाइड्रोजन के केस में, ठीक है। सो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर टोटल 3 हाइड्रोजन है। सो अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 हो जाए, और इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां पर भी टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हो गए। लेकिन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, अब देखो इसके पास क्या बचा? ऑक्सीजन, ये भी 2 है, यहां पर भी ऑक्सीजन था, ये भी बैलेंस्ड हो गया। सो वी हैव बैलेंस्ड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाउ द रिमेनिंग पार्ट इज सोडियम। सोडियम यहां पर 2 है, यहां पर 1 है। सो क्या ये बैलेंस हो गया है? हाँ, अगर चेक करना हो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाओ। सो मैं यहां पर लिख देता हूं और एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक सोडियम एटम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23। सो वी हैव 2 हियर, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 23। एक H2O मॉलिक्यूल का अभी अभी निकाला था 18, हमारे पास 2 है, ठीक है। टोटल मास कितना हो जाएगा? 46 प्लस 36, इट्स 82। ओके, नाउ वी हैव 2 molecules of NaOH, so 2 multiplied by 23 प्लस 16 प्लस 1, और ये प्लस होगा 2।
कितना हो गया 80 प्लस 2 82। सो देखो रिएक्टेंट्स का मास 82 यूनिफाइड मास, प्रोडक्ट का मास 82 यूनिफाइड मास। सो बोथ द साइड्स सेम है, यानी कि ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया। सो आई होप अब तक तो सबको समझ में आ गया होगा बैलेंसिंग के स्टेप्स। थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 whole thrice reacts with sodium hydroxide NaOH and forms aluminium hydroxide AlOH का whole thrice plus and forms sodium sulfate। So ये डरावना सा रिएक्शन दिया गया है एंड वी हैव टू बैलेंस। नाउ स्टेप 1 बॉक्स बनाना है। अब चूंकि अब तक तो समझ में आ ही गया होगा बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने का क्या कारण होता है, बॉक्स के अंदर में जितने भी एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स है उनको छेड़छाड़ नहीं करना है, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना उसमें। ठीक है, बॉक्स बनाया। दूसरे में एलिमेंट्स का लिस्ट बनाया। ठीक है, स्टेप 3 हमें वो कंपाउंड सेलेक्ट करना है विच इज हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। सो क्लियरली यहाँ पर ये कंपाउंड सेलेक्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स कंटेन कर रहा है। ठीक है, नाउ अब जब इसे सेलेक्ट कर लिया है तो हमें वो एलिमेंट सेलेक्ट करना है या फिर वो ग्रुप सेलेक्ट करना है जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स को कंटेन करे। अब देखो यहाँ पर एक बुद्धि लगाने वाली बात है। क्या है, सल्फेट है, SO4 एक कंप्लीट ग्रुप है, ये कंप्लीट आयन है। ठीक है, यहाँ पर भी SO4 है। अब इसे बैलेंस कर देंगे तो इसके साथ में सल्फर और ऑक्सीजन दोनों बैलेंस हो जाएगा। क्लियर है, इतना लॉजिकली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सो SO4 यहाँ पर कितने हैं, टोटल 3 है, यहाँ पर 1 है। तो अगर हम इस कंपाउंड को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या SO4 बैलेंस हो गया, यहाँ तक ठीक है। अब सोडियम पहले से 2 था, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल 6 नंबर ऑफ एटम्स हो गए सोडियम के। सो इसको हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि सोडियम बैलेंस हो जाए। अब देखो यहाँ पर OH है, यहाँ पर भी OH है, टोटल 6 OH है, लेकिन यहाँ पर 3 है। और एल्यूमिनियम भी देखो यहाँ पर 2 है, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो जाएगा, OH भी बैलेंस हो जाएगा। सो सारे एलिमेंट्स को बैलेंस कर दिया, यानी कि बन गया हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर लास्ट टॉपिक। It's a very short topic and basically it's a trick that how to make any chemical reaction more informative. Okay, so write down the topic, how to make chemical reaction more informative. Okay, informative। क्लास हमने कहाँ से शुरू किया था, केमिकल इक्वेशन से। केमिकल इक्वेशन लिखना सीखा, फिर उसी इक्वेशन को बैलेंस करना सीखा। नाउ टू मेक एनी केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव देयर आर सम बेसिक ट्रिक्स जो कि मैं अभी तक यूज करता आ रहा हूँ, लेकिन बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी इन ए प्रॉपर मैनर नाउ। ओके, पहला ट्रिक क्या है, जो भी केमिकल इक्वेशन या फिर रिएक्शन है उसमें फिजिकल स्टेट्स दिखा देना। ठीक है, जैसे कि जो भी एलिमेंट या फिर कंपाउंड यूज हो रहे हैं, यू हैव टू शो देयर फिजिकल स्टेट्स। फॉर एग्जाम्पल अब स्टेट्स क्या हो सकता है, या तो सॉलिड होगा, या तो लिक्विड होगा, या तो गैसियस होगा, या तो फिर प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, या फिर जो गैस है वो रिलीज हो रहा होगा। ये सब सिंबल्स मैं यूज कर चुका हूँ, ये सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए, गैस के लिए, या फिर ये प्रेसिपिटेट के लिए, या फिर ये जो गैस रिलीज हो रहा है उसके लिए। नाउ आप गैस के लिए ये दोनों यूज कर सकते हो, लेकिन प्रेफरेबल ये रहेगा। लेकिन अगर आप गैस को कंटेन करके रख रहे हो किसी चैम्बर में और वो रिलीज मतलब हवा में ऐसे उड़ नहीं रहा, तो फिर ये सिंबल यूज किया जाना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे कि कोई केमिकल रिएक्शन ले लो, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम रिएक्ट्स विद वाटर, पानी मिला दिया इसमें, एंड इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट इज स्लैक लाइम। ठीक है, सो जब कैल्शियम ऑक्साइड होता है शुरू में क्या होता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, एंड इसमें जैसे ही पानी मिलाते हैं, पानी क्या है, लिक्विड फॉर्म में होता है, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक्वस फॉर्म में होता है। सो एक्वस, AQ, एक्वस फॉर्म में, एक्वस मीनिंग डिजॉल्व इन वाटर।
when any element or compound is dissolved in water then the solution is represented as aqueous. ओके, सो देखो अब ये क्या है, मोर इन्फॉर्मेटिव हो गया। साथ में क्या होता है, हीट भी रिलीज होता है, यानी कि किसी केमिकल रिएक्शन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए एनर्जी का फ्लो भी दिखाएंगे। ठीक है, एनर्जी फ्लो दिखाएंगे। एनर्जी फ्लो कहने का क्या मतलब है, या तो वो हीट रिलीज करेगा या तो हीट एब्जॉर्ब करेगा। हीट की जगह पे किसी किसी रिएक्शन में सनलाइट हो सकता है, यानी कि क्या, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी को भी शो करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए हीट वाला केस तो अभी बता दिया आपको, इस रिएक्शन में हीट रिलीज हो रहा है। लाइट वाला देख लो, व्हेन AgCl इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, लेट्स राइट हियर लाइट, ब्रेक्स इनटू सिल्वर एंड Cl2 क्लोरीन। इसे बैलेंस करेंगे, 2 क्लोरीन है, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 2 कर दिया। ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया। सो AgCl क्या होता है, सॉलिड स्टेट में। सो ये हो गया जो सॉलिड होगा, एंड क्लोरीन जो है गैसियस फॉर्म में ऑब्टेन होगा। ना इलेक्ट्रिसिटी वाला पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए H2O है, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया। आप इसके बारे में डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जब पढ़ेंगे उसमें मैं बताऊंगा अच्छे से। इलेक्ट्रोलाइसिस बेसिकली ब्रेकिंग एनी कंपाउंड बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि यहाँ पर जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, इसमें क्या होगा, H2 एंड O2 में टूट जाएगा। ये दोनों क्या होंगे, गैसियस फॉर्म में होंगे। स्टेट भी दिखा दिया। ठीक है, ये क्या था, लिक्विड था। इसको बैलेंस कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 ऑक्सीजन 2, यहाँ पर भी 2, बैलेंस भी हो गया। क्लियर है। नाउ देयर इज वन मोर स्टेप टू मेक एनी केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। ओके, थर्ड क्या हो सकता है, थर्ड क्या हो सकता है, ये स्पेशल कंडीशन है, किसी किसी केमिकल रिएक्शन में कंडीशन भी शो करते हैं। ओके, या फिर कैटलिस्ट शो करना। कैटलिस्ट के बारे में आप आगे पढ़ोगे, बेसिकली रिप्रेजेंट द कंडीशन। थर्ड स्टेप इज कंडीशन को शो करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन गैस, ओके, एट 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट 300 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर क्या है, 300 डिग्री सेल्सियस है, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड इट फॉर्म्स मिथेनॉल, ओके, CH3OH in the liquid form. It's the chemical formula of methanol. It's a carbon compound, and about carbon compounds we are going to study in chapter 4th. Okay, in this reaction there is also a catalyst. You can show the reaction takes place on the surface of zinc oxide plus CrO3. Okay, so these are the catalysts, and in the presence of these catalysts, zinc oxide and chromium oxide, this reaction takes place. So the indication of 300 atmospheric pressure and the catalyst, ये क्या आता है, कंडीशंस की कैटेगरी में आता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, वो फोटोसिंथेसिस वाला। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विथ वाटर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, गैसियस फॉर्म में होगा, वाटर क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये रिएक्शन कब होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। एंड क्लोरोफिल, in the presence of sunlight, and chlorophyll gives C6H12O6, और ये प्रोड्यूस होगा एक्वस फॉर्म में along with the evolution of oxygen gas. So I hope आपको ये टॉपिक भी समझ में आया होगा कि किसी भी रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएंगे। So now let's summarize that what we have learned today. ठीक है, so first our main focus was to learn about the representation of chemical reaction. First we have studied केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में क्या पढ़े थे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को थ्योरेटिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय द यूज ऑफ केमिकल सिंबल्स एंड फॉर्मूले। ठीक है, सो केमिकल इक्वेशन। सेकेंड टॉपिक हमने क्या पढ़ा, बैलेंसिंग। वी स्टडीड अबाउट बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, एंड उसके बाद हमने मेथड पढ़ा, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, एंड आफ्टर दैट वी स्टडीड अबाउट हाउ टू मेक
एनी केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, यानी कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को प्रॉपरली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मोर इंफॉर्मेटिव। ओके, ये तरीका भी हमने देख लिया। सो आई होप आपको ये जो इंफॉर्मेशन वाला वीडियो है ये क्लियर हो गया होगा। एंड अगर क्लियर नहीं हुआ है, अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का एक लिंक मिलेगा जिसपे बहुत सारे सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं, कुछ थ्योरी बेस्ड हैं, कुछ बैलेंसिंग से रिलेटेड भी है। ठीक है, सो आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, इससे जो है आपका नॉलेज ही बढ़ेगा। एंड अगर आपको डाउट होगा तो आप ये टेलीग्राम पे ये डाउट पूछ सकते हैं, हमारी पूरी टीम टेलीग्राम पे मौजूद है एंड दे आर देयर टू हेल्प यू गाइस विथ योर डाउट्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड see you in the next video. In the next video we are going to study about the types of chemical reactions. So see you in the next video. Good luck. Thank you.